Hello everyone, welcome to Career Launcher. And today we are going to talk about NLUs, and this is the one of the sections of CLAT exam, that is quantitative techniques. So in quantitative techniques, you don't get a lot of individual questions. You get a caselet, and what is a caselet? Caselet means you get a theory kind of thing, and on that basis, you are going to get uh, uh, six, seven questions and all. Right. So, hello Kushagra, how are you? So, in QT, when we are talking about CLAT exam, Riva, good evening. So, good evening. Basically, when we talk about CLAT exam, so the people give least weightage to QT because uh, the problem is QT doesn't have a lot of questions. It has 10 to 12 questions, so people don't uh, care about it. But I think you should, because getting 7 to 10, 7 to 8 questions out of 12 is not a big task, and that makes a huge difference. That brings you down from Nalsar or NLU Bangalore to Jodhpur, right? So that is, I think, Jodhpur is good, but still, if you compare it with Bangalore, right? So this is what I think you need to work on. So there are a few questions that we are going to discuss in today's session. So basically, this set, what does it say? It says, in a state level sports meet, the participants are divided into 3 zones. Okay. So now read the question first and read it slowly. Don't rush in. Right. The problem is people try to solve these kind of questions very quickly. Don't, just don't rush in. Read it slowly, and if you are going to read it slowly, you are going to save a lot of time. If you are going to read fast, you need to read it thrice, 4 times, 5 times. That's the reason reading fast doesn't help. Read it slowly. If you are talking about quantitative techniques or quantitative aptitude, reading slowly always work. Right. So in a sports level meet, the participants are divided into 3 zones. Okay. North, South, and Central. The total number of participants are 3540. Out of 1260 are from Central. Okay. The number of participants from North and South zones are in the ratio of 10:9 respectively. 60% participants in the North zone are males. So basically, question is talking about 3 zones: North, South, and Central, and in each zone, it is talking about male and females. Right. So let's try to get the answers of all the values. Let's try to get all the values by solving it. So first of all, what we are supposed to do? I am going to write 3 zones. One is North, second one is South, third one is Central. Now all 3 zones have males and females. So we have male candidates, we have female candidates from North, we have male candidates, female candidates from South, we have male and female candidates from Central. And total number of candidates I am talking about, that is going to be 3540. 3540. Okay. Now let's break it down slowly. So from Central Zone, there are 1260. So from Central Zone, there are 1260 people. So what is the remaining number of people? That is 3540 minus 1260. So what is the value that we are going to get? We are going to get 2280. Understood? So sum of this plus this is going to be 2280. Riva, we are going to cover a couple of topics in today's session itself. One is going to be general, second is going to be specific, right? So don't worry about it. More or less, we are going to cover everything. We are going to cover every type of caselet in the online session. Fine. So don't worry about it. And while doing the questions, I'm going to cover more or less every concept that is needed in the session. Make sense? Okay. So 3 out of 3540, 1260 are in the central one, 2280 are going to be north and south ones. Okay.
the number of participants in north and south ones are in the ratio of 10 is to 9. So my job is to break this in the ratio of 10 is to 9. Okay. So what is 10 plus 9? That is 19, right? So out of 19, 10 are from north zone. So that is 2280. Okay. This comes out to be 120. So north comes out to be 1200. So one and south is going to be 9 by 19 of 2280. So that comes out to be 120 into 9, that is 1080. Okay, so I'm going to tell you that how you can divide 2280 by 19 very quickly, even if you don't know the table of 90, right? So I am going to write it as 1900 plus 380 divide by 19 divide by 19. So this comes out to be 100 and this comes out to be 20. So 2280 divided by 19 comes out to be 120. So this is how we can calculate the value. So 2280. So total number of candidates in north and south are 2280, right? And in this, the ratio of north and south is 10 is to 9. So 10 plus 9 is 19. Out of 19, north are 10. So north are going to be 10 out of 19. Of what? Of 2280. South is going to be what? 9 out of 19 of what? 2280. Make sense? Now, are we clear on this? Now it says 60% of the participants. So 10% of 120, 10% of 1200 comes out to be 120, right? Now 60% is going to be 6 times 120, that is going to be 720. So this is going to be 40%, or you can do 1200 minus 720, that comes out to be 480, right? Now what does it say? Whereas male in the central zone are 180 more than males in the north zone. So male in the central zone are 180 more than this. So what is the value that we are going to get? That is 180 plus 720. That is going to be 900. Total number of south people are 1260. Out of this, males are 900. So how many females we are talking about? 360, right? Now it says total number of females are 1440, out of which 600 are in south zone. So 600 females are there. So how many males? 480. So we got all the numbers that were needed. Now tell me, if anyone is there who didn't understand any of the things, so how to convert, how to break a number into ratios? So 2280 has to be divided into 10 is to 9. So 10 by 19 into 10 by 19 and 9 by 19 of 2280. Now, how to calculate these kind of things very quickly? We have already discussed it. That 2280 divided by 19, it means 1900 plus 380. So you can always take the multiple of 90. Riva, the total number of candidates in North are 1200. 60% are males, means 720. So out of 1200, 720 are male. So what is the number of females? That is 1200 minus 720, and that's how we are going to get 480. Now same goes for the south one, that out of 1080, 600 females are there. So how many males are going to be there? That is 1080 minus 600, and that gives us 480. Make sense? And males in the central zone are 180 more than north. So north is 720, so 180 more comes out to be 900.
And out of 1260, 900 are males. So how many females are there? That is going to be 360, and that's how we can calculate, right? Now, let's look at first question. What does it say? So what is the answer of the first question? The total number of males from the north zone. The total number of males from the north zone is 720. Right. Is what percent more or less? So number of males in the north zone are 720. Number of females in the south zone is 600. Now we are looking for percentage change. So the difference comes out to be 120. Now, whichever value comes after them always goes to denominator. Any value that comes after then goes to denominator. मतलब जो भी नंबर then के बाद आएगा वो हमेशा नीचे ही आएगा. So percentage change is given by change upon initial value into 100. And initial value कौन सी होगी? That is going to be the value that comes after then. So जो भी value then के बाद आएगी, we are going to consider that value as initial value. So what is the change? 720 and 600, that is 120. Value कौन सी नीचे आ रही है? That is 600 into 100. So answer comes out to be 20%. Now the next one. What is the ratio of males to females in the central zone? Very nice. सेंट्रल जोन में मेल कितने? 900. फीमेल्स कितनी है? 360. ना अच्छा एक बात बताओ, ये जो हम रेशियो की बात कर रहे हैं, ये वैल्यू डबल से ज्यादा है कि नहीं है? दिस इज मोर देन ट्वाइस और नॉट? 360 का डबल 720 होगा, तो ये वाली वैल्यू, तो ओवरऑल रेशियो शुड बी मोर देन 2, राइट? सो कौन सा रेशियो 2 से बड़ा है? सो 2:3 तो 1 से छोटा है, 4:3 1 पॉइंट समथिंग है, 3:5 1 से छोटा है, 5:2 2 से बड़ा है. तो अपना आंसर क्या आ गया? सीधे आंसर आ गया ऑप्शन डी. So basically, whenever you are solving a question, look at the options, approximate and get the answer. ठीक है. Now question number 3, आंसर क्या आएगा? Question number 3, what is the answer? I am not going to calculate this. देखो, अगर सारे के सारे मेल है नॉर्थ जोन में, तो कितने लोगों को मेडल मिला? 10% लोगों को. अगर सारी की सारी फीमेल्स है, तो कितने लोगों को मेडल मिला? 12.5% लोगों को. अगर कुछ मेल और कुछ फीमेल है, तो जो परसेंटेज आएगा वो 10 से बड़ा और 12.5 से छोटा होना चाहिए. कौन सा ऑप्शन? दैट इज ऑप्शन बी. सीधे आंसर है, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें. क्लियर? अगर सारे के सारे मेल हैं, सो 10% लोगों को मेडल मिलेगा. सारी की सारी फीमेल्स हैं, तो 12.5% को मिलेगा. अगर कुछ मेल और कुछ फीमेल है, सो 10 से ज्यादा और 12.5 से कम. कुछ नहीं करना है. ये वाला क्वेश्चन करने के लिए आपको सेट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. आप बस ये देखिए, सीधे आंसर निकालिए. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द अप्रोच यू आर गोइंग टू टेक इन दिस वन? दिस डिवाइड बाय 3. ऐसा नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स आर 1440, ये हमको गिवन है. नंबर ऑफ जोन्स कितने हैं? 3. सो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स आर 1440
नंबर ऑफ जोन्स आर 3, व्हाट इज द एवरेज? तो अच्छा एक बात बताओ, 1500 डिवाइड बाई 3 कितना होगा? 500। सो 1440 डिवाइड बाई 3 होगा 500 से थोड़ा कम। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। आगे आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए आपको सेट की बस लास्ट लाइन पढ़नी है, आपको पूरा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए तो कुछ भी नहीं पढ़ना है, सीधे बेसिक लॉजिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। ये अपने दो क्वेश्चन जो हैं ये 2 मिनट में खत्म हो जाने चाहिए पेपर में। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए टोटल नंबर ऑफ फीमेल सीधे गिवन है, नंबर ऑफ जोन सीधे गिवन है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ जोन्स, सीधे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में 10 से 12.5 के बीच में आंसर होना चाहिए, आंसर सीधे आ जाएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं इन क्वेश्चंस में। मेक सेंस? So I hope everyone understood this set. So I am moving to the next one. ठीक है, ये है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 3 स्मॉल पंप है, एक पी है, एक क्यू है और एक आर है, और एक चौथा पंप है दैट इज एस। ठीक है, टोटल कैपेसिटी जो गिवन है हमको वो कितनी गिवन है? दैट इज गिवन टू अस एज 1200। ठीक, क्यू है वो पी से 50% ज्यादा इफिशियंट है। ठीक है, 50% का मतलब 1/2, राइट? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि पी की जो इफिशियंसी है वो है 2x। ठीक, क्यू की इफिशियंसी 50%, मतलब 2x का 50% क्या होगा? x, और x ज्यादा किससे? 2x से, तो क्यू की इफिशियंसी क्या होगी? 3x। आर जो है वो क्या होगा? 33.33। 33.33 कितना होता है? 1/3, राइट? ये क्यू से 1/3 ज्यादा एफिशिएंट है। सो 3x का 1/3 क्या होगा? x। 3x का 1/3 होगा x, और जो r है वो q से x ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब कितना एफिशिएंट होगा? 4x। s जो है वो r से 50% ज्यादा एफिशिएंट है, तो r की इफिशियंसी अगर 4x है तो s की इफिशियंसी क्या होनी चाहिए? 6x, इससे 2x ज्यादा। अच्छा, अब इफिशियंसी क्या होती है? इफिशियंसी का मतलब मैं इसको ये मान लूं कि पी की इफिशियंसी है 2x, 2x का मतलब अज्यूम कर लिया 20, ये पी की इफिशियंसी है 20, आर की इफिशियंसी है 40। व्हाट इज इफिशियंसी? इफिशियंसी का मतलब ये हो गया कि पी 1 मिनट में 20 लीटर पानी डाल रहा है और आर जो है वो 1 मिनट में 40 लीटर पानी डाल रहा है। ठीक है, तो पी और आर के टाइम का रेशियो क्या होगा? तो पी जो है वो 1200/20 लेगा, मतलब 60 मिनट लेगा। आर जो है वो 1200/40 लेगा, मतलब 30 मिनट लेगा। इसका मतलब इफिशियंसी का रेशियो 1:2, तो टाइम का रेशियो 2:1। मतलब जो टाइम होता है वो इफिशियंसी के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। तो अगर इफिशियंसी का रेशियो 2:3 है तो टाइम का रेशियो 3:2 होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, इफिशियंसी और टाइम हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शन में जाएंगे। समझ आई बात ये वाली सबको? सो इफिशियंसी और टाइम हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे, ये बात हमेशा हमको ध्यान रखनी है कि इफिशियंसी अगर 2:3 है तो टाइम का रेशियो जो होगा वो 3:2 होगा, बस। अब आगे क्वेश्चन समझते हैं। अगला पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो यहाँ पे हम निकाल के आ चुके हैं पी की इफिशियंसी, क्यू की इफिशियंसी, आर की इफिशियंसी एंड एस की इफिशियंसी। सो पी कितना है? 2x, क्यू कितना है? 3x, आर कितना है? 4x, एंड इफिशियंसी है ये सब, और एस कितना है? 6x। नाउ दिस इज रेशियो ऑफ इफिशियंसी। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय एस
टू टाइम टेकन बाय पी क्यू आर टुगेदर। इसका आंसर क्या आएगा? तो एस की इफिशियंसी और पी क्यू आर की इफिशियंसी का रेशियो क्या है? एस की इफिशियंसी है 6x, पी क्यू आर तीनों की क्यूमुलेटिव इफिशियंसी क्या है? 9x। सो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो गया? 2:3। मतलब टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2। अंडरस्टूड? हाँ, अब बताओ क्या ये बात समझ में आई या ये बात समझ में नहीं आई? उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर यहां तक कोई डाउट है टाइम इन वर्क में, सो लेट्स टेक कपल ऑफ क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, then proceed. Otherwise, if everyone understood, then directly proceed. तो यहाँ पे टोटल कुछ वर्क पे काम करने की जरूरत नहीं है, सीधे एफिशिएंसी से अपन आंसर निकाल सकते हैं। कुशाग्र, प्रांशी, रीवा, नूर, अंडरस्टूड? ये सबको समझ में आया? Okay, now let's move on to the next one. अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? आर जो है, आर को, अच्छा ठीक है, आई डिडंट अंडरस्टैंड। अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाउ 20? अच्छा देखो, जो 20 है, 20 हम अज्यूम, मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिया है कि पी की एफिशिएंसी जो है वो 20 रैंडमली अज्यूम की है नहीं 20। दैट वाज टू एक्सप्लेन, मतलब पी जो है, पी की एफिशिएंसी मैंने मान ली 20, और तो अगर पी की एफिशिएंसी 20 है तो आर की एफिशिएंसी 40 होगी। दैट इज रैंडम अजम्पशन, ठीक है? तो टोटल 1200 लीटर भरने में 20 की स्पीड से पी को कितना टाइम लगेगा? पी को लगेगा 60 मिनट, 1200 बाई 20, ठीक है? आर को कितना टाइम लगेगा? 1200 अपॉन 40, मतलब 30 मिनट्स। सो इफिशियंसी का रेशियो अगर मैं अज्यूम कर लूं कि 1:2 है, तो टाइम का रेशियो 2:1 होगा। मैं बस ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। Noor, I was unable to see your messages. That's the reason I didn't understood. ठीक है, अब क्लियर है ये बात कि ये कोई वैल्यू नहीं है, ये मैंने रैंडमली अज्यूम कर लिया है, ठीक है? इट इज नॉट देयर टू सॉल्व द क्वेश्चन। जो ये है वो केवल इतना है कि देखो, पी क्यू आर 3 पंप है, क्यू जो है वो पी से 50% ज्यादा एफिशिएंट है, तो पी 50% का मतलब 1/2, राइट? तो अब मैं पी को 2x मान लेता हूं, पी की एफिशिएंसी क्या हो गई? 2x। तो आर की जो, तो क्यू की एफिशिएंसी होगी वो 2x से 50% ज्यादा, मतलब 3x हो गई, राइट? कुशाग्र, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 50% का मतलब 1/2 होता है, इसलिए मैंने 2x अज्यूम कर ली, x अज्यूम नहीं की, ठीक है? सो 2x का 1/2 मैं निकाल सकता हूं, ठीक है ना? सो 2x से 50% ज्यादा 3x, 3x से 1/3 ज्यादा 4x। नूर, अच्छा ठीक है, एक बार वापस से देख लेते हैं। नूर, द प्रॉब्लम इज वी कैन अज्यूम द एफिशिएंसी ऑफ पी एज एक्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको, आंसर नहीं चेंज होगा, ठीक है? लेकिन अच्छा देखो, नूर कह रही है कि पी की एफिशिएंसी क्या हम एक्स मान सकते हैं? हाँ मान सकते हैं, क्या दिक्कत है? अगर पी की एफिशिएंसी एक्स है तो क्यू की क्या होगी? एक्स से 50% ज्यादा, मतलब 1.5x होगी। डू यू वांट टू वर्क ऑन डेसिमल्स? नूर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? The reason I am assuming that efficiency of P is 2x, क्योंकि 2x का 50% जो होगा वो x होगा, ठीक है? तो x होगा तो q की एफिशिएंसी मेरी इंटीजर नंबर में आएगी, ठीक है ना?
तो अगर मैं x भी मानता हूं ना, तो उससे आंसर चेंज नहीं होगा. इवेंचुअली वी आर वर्किंग विद रेशियोज, इट वोंट मेक अ डिफरेंस. मेक सेंस? नाउ r is 1/3 more efficient than q. r जो है वो q से 1/3 ज्यादा efficient है. नाउ इफ यू सी, q is already a multiple of 3. सो r की जो efficiency आएगी वो 3x का 1/3, that is x. Yes, Noor, we can definitely do it. It's not false. It's not wrong actually. Eventually we are going to take in terms of x. ठीक है. नाउ s की इफिशियंसी क्या होगी? r से 50% ज्यादा, तो r का 4x है, तो s का कितना होना चाहिए? 6x. ठीक है. अब देखो, जो टाइम होता है, टाइम हमेशा इफिशियंसी के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है. टाइम हमेशा से इफिशियंसी के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है. तो अगर p को 2x टाइम, p की इफिशियंसी है 2x, r की इफिशियंसी है 4x. सो इफिशियंसी का अगर मैं रेशियो लूं तो इफिशियंसी है 1:2. राइट? इफिशियंसी का रेशियो क्या है? 1:2. तो टाइम का रेशियो यहां पे क्या होगा? टाइम का रेशियो होगा 2:1, इनवर्स. समझ आई बात? तो अगर तुम यहां पे अगर डेसिमल में भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तब भी सेम ही आएगा. क्लियर? नाउ आई थिंक एवरीवन अंडरस्टूड. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन. अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? सबको वो टेबल क्लियर हो गई कि इफिशियंसीज हमने कैसे निकाली है? रीवा समझ में आ गया? ठीक है. सो पी क्यू आर एस. तो पी का एफिशिएंसी क्या था? 2x. क्यू का क्या था? 3x. आर का क्या था? 4x. एक्स एस का क्या था? 6x. नाउ क्वेश्चन इज सेइंग रेशियो ऑफ टाइम टेकन, नॉट रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, s एंड पी क्यू आर टुगेदर. तो s की एफिशिएंसी क्या है? 6x. पी क्यू आर टुगेदर की एफिशिएंसी क्या है? दैट इज 9x. राइट? सो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो गया? 2:3. x तो कट गया. अगर इफिशियंसी का रेशियो 2:3 है तो टाइम का रेशियो क्या होना चाहिए? 3:2. इनवर्स होना चाहिए. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? दैट इज ऑप्शन सी. मेक सेंस? अब सबको क्लियर है? ठीक. अब ये वाला क्वेश्चन है. आर को टोटल भरने में 30 मिनट लगता है. आर को टैंक भरने में 30 मिनट लगता है. व्हाट इज द रेट फ्लो? मैं वापस से वही लिख रहा हूं, पी क्यू आर एस. पी जो है 2x, मतलब P 1 मिनट में 2x पानी डालता है, Q 1 मिनट में 3x डालता है, R 1 मिनट में 4x डालता है और 6 1 मिनट में 6x डालता है. दैट्स द एफिशिएंसी. राइट? अब R 1 मिनट में 4x डाल रहा है, 30 मिनट्स में टंकी भर देता है. सो टंकी भर दी मतलब टोटल एफिशिएंसी इनटू टाइम मतलब टोटल वर्क डन. ये वैल्यू क्या आ गई? 40. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10. तो Q 1 मिनट में कितना पानी डालेगा? 3 × 10. आंसर क्या आ गया? 30. ऑप्शन ए. समझ आया? वेरी नाइस प्रांशी. क्लियर है सबको ये बात? अपन ने कैसे किया इसको? अच्छा, रीवा, आर की इफिशियंसी है 4x. इफिशियंसी का मतलब क्या है? 1 मिनट में 4x पानी डाल रहे हैं. नो प्रांशी, assumption was to explain, जरूरी नहीं था वो. ठीक है. सो बेसिकली क्या है कि आर 1 मिनट में 4x पानी डाल रहा है. सो 30 मिनट में कितना पानी डालेगा? 4x × 30. राइट? और 4x × 30 पानी डाला और टंकी भर गई. इसका मतलब दिस 4x × 30 शुड बी इक्वल टू 1200, क्योंकि टंकी तो 1200 की है. ठीक है. तो यहां से x की वैल्यू आ गई 10. अब Q जो है वो 1 मिनट में 3x पानी निकाल रहे हैं. सो x की वैल्यू 10 है, सो 3x की वैल्यू क्या होगी?
30। बात समझ में आई? क्लियर है ये बात? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, गेट द आंसर। एस को 20 मिनट लगता है पानी भरने में, पी और क्यू को कितना टाइम लगेगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो वी हैव पी क्यू आर एस। डॉग लवर, व्हाट्स योर नेम? ओके चंद्रलेखा। स्टार्ट करते हैं। यस कुशाग्र, दे हैव चेंज द डेट। नाउ I'm not calculating the time, I'm not calculating efficiencies, I'm not calculating time for everyone, I'm not calculating that. I am saying कि मुझे पी और क्यू का टाइम चाहिए, ठीक है? सो एस का जो सीन है, एफिशिएंसी पी की 2x है, क्यू की 3x है, आर की 4x है, एस की 6x है। सो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? सो एफिशिएंसी का रेशियो होगा, एस की एफिशिएंसी 6x है और पी और क्यू दोनों की मिला के 5x है। सो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया? 6:5। तो टाइम का रेशियो क्या आना चाहिए? 5:6। हाँ है ना? यहां तक हम क्लियर है कि नहीं है? ठीक है ना? अब इसको किधर, एस को कितना टाइम लग रहा है? 20। मतलब जो 5 है वो 20 के बराबर है। 5 अगर 20 के बराबर है तो एक 4 के बराबर है, तो 6 कितने के बराबर होना चाहिए? एफिशिएंट एग्जैक्ट एफिशिएंसी कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे टाइम का रेशियो निकाल के टाइम की वैल्यू निकाल लो। एफिशिएंसी का रेशियो 6:5, टाइम का रेशियो 5:6। Riva, I'm not sure. I think it is visible to others. Pranshi, Chandralekha, Noor, Kushagra, can you see the questions clearly? Anyhow, Riva, this video is anyhow going to be there on the YouTube itself, so you don't have to worry about it. But are you getting how we are doing it? रीवा, जो क्वेश्चन वो क्वेश्चन नहीं है, वो इनिशियल इंफॉर्मेशन है। ये वाली इंफॉर्मेशन जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है ना, वो इंफॉर्मेशन जो है वो कॉर्नर में लिख दी है और कुछ नहीं है। दैट इज द सेम इंफॉर्मेशन वी हैव, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज देयर। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन तो बस इतना ही है, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट वन।
पी क्यू आर एस, पी की एफिशिएंसी क्या है 2x, क्यू की क्या है 3x, आर की क्या है 4x, एक्स की क्या है 6x। ठीक है, एस की एग्जिस्टिंग कितनी है 60, मतलब 6x इज व्हाट 60, देन x इज व्हाट 10। तो P की एफिशिएंसी क्या होगी 20, Q की क्या होगी 30, R की क्या होगी 40। व्हाट इज द क्यूमुलेटिव एफिशिएंसी, दैट इज 150। टंकी में पानी कितना भरना है 1200, एफिशिएंसी क्या है 150। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द टाइम टेकन, दैट इज गोइंग टू बी 8 मिनट्स। ठीक है, अब क्या हुआ इस क्वेश्चन में कि इफ द रेट फ्लो डिक्रीजेस, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40, और एस की 60 से कम होके कितनी हो गई 30। सो अब एफिशिएंसी क्या आई 120, पानी कितना भरना था 1200, करंट एफिशिएंसी क्या है 120, कितना टाइम लगा 10 मिनट्स। सो पहले कितना टाइम लग रहा था 8 मिनट्स, अब कितना टाइम लग रहा है 10 मिनट्स, कितना एडिशनल टाइम लगा, फाइंड द एक्स्ट्रा टाइम टेकन। सो व्हाट इज द एक्स्ट्रा टाइम टेकन, दैट्स इट। समझ आया? अच्छा एक बात बताओ, वी हैव डन 2 सेट्स टुडे, तुम्हें लगता है कि एग्जाम में होंगे? जब क्लैट देने जाओगे तुम्हें लग रहा है कि 7 6 7 8 क्वेश्चंस कर लोगे आराम से? एक कुशाग्र, एक बात याद रखो, वी आर गोइंग टू कवर ऑल द वेराइटीज ऑन द यूट्यूब सेशंस, लगभग सारी सारी वैरायटी कवर कर लेंगे हम, उसका टेंशन मत लो कि इस टाइप का आएगा। ये तो पहला सेशन है, अभी बहुत सारे सेशन होंगे। ठीक है, सो बेसिकली जब सारे सेशन होंगे, मोर और लेस यू वट एवर यू आर गोइंग टू सी, सिम सेम तो नहीं पता, सेम तो नहीं होगा, मोर मतलब 99.9% आई एम श्योर सेम तो नहीं होगा, बट अगेन आई एम मोर देन 99% श्योर कि सिमिलर थिंग तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेगी। और एक बार तुमने सिमिलर चीज देख ली तो बस इतना मुझे भरोसा दिलाओ तुम लोग कि सिमिलर चीज आ गई तो वो तो हो जाएगी। I'll cover more or less everything, every variety in CLAT that they have asked and they might ask. ठीक है ना, सिमिलर तो कर लेंगे ना हम। बस बस बस, बाकी क्या, बाकी सॉर्टेड है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ LST of QT, and I'm not asking you to do all 12 questions in CLAT. I'm asking at least 7 8 भी हो गए तो जीवन सेट है अपना। ठीक है, बैंगलोर नहीं तो नालसा तो जाएंगे ही। Riva, do one thing. After this, uh, revise 2 sets. What we can do next session में, if you have some doubts that is related to the previous session, मतलब अगले सेशन में इस सेशन का कोई डाउट होगा, we'll do the doubts. ठीक है, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, so this is the
सेशन सेशन प्लान मंडे 5:30 लीगल, ट्यूसडे 5:30 क्यूटी, थर्सडे 5:30 इंग्लिश एंड फ्राइडे 5:30 लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है. सो ओके कुशाग्र, डोंट वरी अबाउट इट, अब हो जाएगा. और अगर किसी का कोई भी डाउट है आई टेक द क्वेरीज. इफ यू फेस एनी डाउट then do one thing, drop a message in the comment box, I'll respond or I am going to cover the query in the next session. ठीक है. स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है. Pranshi, have I taken boot camp? I'm not even sure I've taken boot camp. But if you are saying, then if I think I don't remember the names, but I'm very good at remembering faces. So perhaps if I'm going to see you, then more likely I will recognize you. ठीक है. So so अपन मिलते हैं आगे. ठीक है. चलिए.